Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel where I talk about books. बट मैंने बहुत टाइम से कोई भी वीडियो नहीं पोस्ट करा एंड आई हैव अ वैलिड रीज़न अबाउट इट जो कि मैं आज बताऊंगी एंड इट इज़ रियली फन बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम पोस्ट किया था आई वॉज टेक्निकली अनएम्प्लॉयड एंड आई वॉज लुकिंग फॉर जॉब्स एंड ऑल बट उसके बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई एंड आई फॉरगॉट अबाउट माई यूट्यूब चैनल ऑनेस्टली ना मैंने कहीं पोस्ट किया ना कहीं कुछ अपडेट किया बस मैं एकदम चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो गई और मैं वहाँ से अपने घर से शिफ्ट होने के बाद जिसका ब्लॉग अभी भी मतलब मैंने उस वही लास्ट ब्लॉग था टेक्निकली जो मैंने पोस्ट किया था उसके बाद मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया थोड़ी बहुत रील्स वगैरह करी होगी एक दो मुश्किल से बट फिर मैंने और उसके बाद कुछ पोस्ट ही नहीं किया क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था थिंग्स वर गोइंग सो फास्ट तो मुझे लगा कि वंस आई विल बी लाइक सेटल डाउन फिर मैं सब बताती हूँ तो एग्जैक्टली क्या हुआ मैं कहाँ शिफ्ट हुई हूँ अभी मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली तो ये सब जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो लेट्स स्टार्ट सो मेरा अभी यूट्यूब चैनल पे when I started posting, my first video was related to me being unemployed and how I got this idea that I can post about videos related to books. I can talk about books, maybe review them or just talk about it. तो उसके बाद I posted 3 videos after my first intro video. 3 videos were like totally about books and I was talking about them and then after some time it was like a very long discussion that was going on that we will be planning to shift but फिर उस टाइम पे कंफर्म हो गया that we will be shifting in June and I made a small video about it that was technically my last video and I think it went in the month of June if I'm not wrong because उसके बाद से I got really occupied the moment we shifted उसके बाद shifting settle होना then it was a new place and everything was so fast तो time ही नहीं मिला to review books or at least read about books कुछ नहीं nothing for like very long time I was not able to get time to record anything but right after shifting I think on the same day or maybe 2 days after that I got this job confirmation where I applied and I was really happy and I was really excited that something like this is happening and finally after so many days of being unemployed I will finally get a job and I was really excited because it was not in Lucknow, it was like outside where I am currently. So I was really excited about the shifting part, although I knew it will be really hectic because अभी नए नए घर में शिफ्ट हुए थे आई वॉज नॉट इवन एबल टू अनपैक माई स्टफ एंड देन अगेन आई हैड टू लाइक पैक थिंग्स सो या बट इट वॉज रियली एक्साइटिंग फॉर मी जिसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है विच आई हैव नॉट येट पोस्टेड एनीवेयर बट मैं पोस्ट कर दूंगी आफ्टर मे बी sometime. I don't know, maybe, but I will post about it because why not? So, yeah, I was really excited about this new place that I joined. It was really nice, like everything was going very well, and I shifted to Delhi. Yes. I never saw myself shifting to Delhi because I was really, I don't know, I never really thought about it कि मैं कभी दिल्ली शिफ्ट होंगी फॉर माई वर्क क्योंकि मैं मतलब आई हैव वर्कड इन गुड़गांव फॉर सम टाइम बट दिल्ली वाज नेवर इन द पिक्चर आई वाज लाइक क्या मे बी अगर मिलता है देन व्हाई नॉट बट fortunately or unfortunately whatever reason it is for I shifted to Delhi and उसके बाद start होता है नया chapter I shifted I relocated I brought like almost all my stuff here and then I joined this company I won't be naming it. It was really nice. The people were nice. Everything was going well. But I don't know, for some reason, I was not happy. Somewhere inside, I felt like maybe I deserve better, or I don't know. It was just something that I was not happy with. Although shifting के time पे मैं बहुत खुश थी कि मैं अब दिल्ली में रहूँगी and I finally got a job and maybe this is what God has planned for me. But यहाँ आने के बाद 1 महीने भी नहीं काम किया and I felt like no, I need to move out of this place and that's what I did. मैंने फिर से बिना बैकअप प्लान के
छोड़ दिया। जैसे मैंने फर्स्ट जॉब छोड़ी थी, टेक्निकली माय सेकंड जॉब, जो मैंने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे मैंने बोला था ना, दैट आई एम अनएम्प्लॉयड एंड आई लेफ्ट विदाउट अ बैकअप प्लान। एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड अगेन। एंड द रिस्कियर पार्ट वाज कि मैं अपने होम टाउन में भी नहीं हूँ, मैं अपने घर पे भी नहीं थी। मैं रैंडमली डेली शिफ्ट होने के 1 महीने के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम था मेरा, मैंने छोड़ दिया। दैट आई डोंट नो, आई जस्ट लेफ्ट। तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स हो गई थी। आई वाज़ रियली स्ट्रेस्ड बिकॉज़ ऑब्वियसली कहाँ से आएँगे पैसे रहने के? देन देयर वाज़ पीजी का रेंट, देन इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वाज़ लाइक आई डोंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज जब आप अपने घर के कंफर्ट में होते हो एंड यू आर नॉट वर्किंग, यू नो योर पेरेंट्स आर देयर, यू नो यू विल बी गेटिंग फूड एंड यू नो एवरीथिंग इज यूर इन योर कंफर्ट जोन। बट जब आप बाहर हो, मतलब in a unknown space, you don't know people here, you don't know anyone technically, you I was left without a backup plan, but I already knew that मैंने 1 महीने का पीजी का रेंट दिया है, तो अब मैं इस महीने तो रुकने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेट मी गिव माय बेस्ट, उसके बाद देखेंगे, नहीं होता है तो वापस चले जाएँगे, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। आई अगेन स्टार्टेड अप्लाइंग राइट आफ्टर आई लेफ्ट द ऑर्गनाइज़ेशन। आई took a lot of, time. I prayed a lot. I still pray a lot, but I really felt like giving up, going back to my hometown. I was totally not in a space where I was, you know, can think straight, honestly. So that's what I did. I prayed a lot. I लेफ्ट एवरीथिंग भगवान के हाथ में। मुझे पता था कि वो सँभाल लेंगे। मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, मैं कितना ही हाथ-पैर मार लेती, क्या ही कर लेती। इंटरव्यूज़ के अलावा बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए एंड आई विल बी I it is very disheartening honestly when you go visit a office and get rejected. So now that I'm talking about the interview that I gave, so मेरे सारे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट सारे मैंने जितने भी दिए, मैं जॉब के साथ जहाँ पे काम कर रही थी, उसके साथ में ही आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़ बिकॉज़ आई ऑलरेडी न्यू दैट आइदर दे विल मेक मी लीव और आई विल डिसाइड टू लीव बिकॉज़ था इंस्टिंक्ट, आई वाज़ गेटिंग दैट वाइब दैट आई विल नॉट बी स्टेइंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड now you feel out of place somewhere at times. That is exactly what I was feeling at that time. I was not feeling that I belonged there. So yeah, so I started, right after coming here, within like a week or two, I started applying for different jobs in Delhi only because मैं आ गई थी तो यहीं पर ही ढूँढने का ही ऑप्शन था। Then I started applying and fortunately or unfortunately again I went for 2 like offline interviews. तो 2 इंटरव्यूज़ ऑफलाइन थे, बाकी तो ऑनलाइन में दे ही रही थी बैक टू बैक। जिसमें से वन वाज इन द मॉर्निंग अराउंड 11:30 एंड वन वाज इन द इवनिंग अराउंड 4 और 4:30, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइम। तो मैं आई वाज रियली एक्साइटेड कि मैं दोनों इंटरव्यू दे दूंगी एक दिन में ही मुझे। एंड आई वाज, माइंड यू, आई वाज ऑन माय प्रोबेशन, तो टेक्निकली आई वाज नॉट गेटिंग पेड लीव्स और एनीथिंग, कोई ऐसा सीन नहीं था। सो लाइक आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, इट्स वर्थ इट, 2 इंटरव्यूज, आई विल डेफिनेटली गेट इनटू वन। नहीं, नहीं हुआ, एक में भी नहीं हुआ। एंड आई वाज सो स्ट्रेस्ड बिकॉज आई थॉट कि अगर यहाँ हो जाएगा तो मैं बाय बाय बोल दूंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, बट नहीं हुआ। एंड इट्स, I don't know, it's fine, I guess, because क्योंकि first interview was really good. It was in an agency and me coming from an agency background, I thought कि ठीक है,
एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी के लिए ही बनी हूँ, मे बी आई एम नॉट फॉर इन हाउस मार्केटिंग टीम और एनीथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगा कि ठीक है, एजेंसी में ही इंटरव्यू देती हूँ। तो दोनों ही एजेंसीज़ थे, दिल्ली बेस्ड ही थे, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा तो आई डोंट नो आपका कैसा रहा होगा, बट दिस इज़ जस्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। दोनों ही खराब थे। एक मॉर्निंग वाली ने तो मुझे, एचआर ने तो मुझे इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, जैसे मतलब कि मैं क्या करूँ? मतलब आई वाज़ सो स्ट्रेस्ड आफ्टर दैट इंटरव्यू कि मुझे लगा कि मुझे कुछ भी दे दे, जितना सीटीसी दे दे, आई विल बी हैप्पी। बिकॉज़ बिकॉज़ शी वाज़ लाइक, आप नहीं हटोगे तो आपको हटा देंगे, जहाँ पे आप हो ऑर्गनाइज़ेशन में। एंड मैं डर गई, मुझे लगा यार सही है, सही में हटा दिया तो मैं क्या करूँगी? ऑल्दो आई वाज़ ओके। उसके पहले तक मैं स्ट्रेस्ड थी, मुझे पता था कि मैं तो अभी बहुत ही ऐसे ना इधर जा सकती हूँ, ना उधर जा सकती हूँ, आई वाज़ ओके, मुझे पता था। मगर उससे बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ़ में? मुझे क्या करना चाहिए? बट स्टिल मुझे लगा चलो ठीक है, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस एंड शी वाज़ ऑनेस्ट, दैट्स द ओनली पार्ट दैट आई लाइक्ड अबाउट हर। व्हाटएवर शी सेड ऑन द फेस, कोई शुगर कोटिंग नहीं, कुछ नथिंग। मेबी शी वाज़ रॉन्ग, maybe nahi, I'm definitely sure she was wrong about a lot of things what she was saying, but मतलब गलत था ना, बट कुछ कर नहीं सकते। इट वाज़ हर बीइंग हर, एचआर है तो आई वाज़ लाइक ओके ठीक है। फिर उसके बाद द इंटरव्यू एंडेड लाइक विदिन 30 मिनट्स। उसके बाद आई लेफ्ट फॉर अनदर इंटरव्यू बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अवेयर। दिल्ली में मैं आई थिंक टेक्निकली फर्स्ट टाइम रह रही हूँ, सो मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ पे क्या है, कितना टाइम लगता है, किधर से किधर डिस्टेंस पहुँचने में। और बहुत ही, बिकॉज़ व्हेन यू आर इन अ वेरी पैनिक की सिचुएशन यू डोंट नो व्हाट टू डू। आपको खुद नहीं पता होता है कि आप क्या कर रहे हो या क्या करने वाले हो या कहाँ जा रहे हो। और जब आप एकदम नए हो किसी जगह पे तो ऑब्वियसली आपको नहीं समझ आता है कि कितना टाइम लगेगा कहाँ से कहाँ जाने में और कैसे जाना है। तो थैंकफुली रैपिडो, उबर एंड ब्ला 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 ऑल दोज़ ऐप्स, तो वो सब अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया। बट फिर मैंने सोचा मैं जल्दी पहुँच जाती हूँ, मे बी ज़्यादा सही रहेगा। इट वाज़ अराउंड 12, सो आई थॉट आई विल sit in a cafe or anywhere and spend some time alone, think what I'm going to do in the future. So that's exactly what I did. मैं जल्दी पहुंच गई and there was a very cute cafe, Zuru Zuru. There I went and I had a bowl of ramen and it was raining. It was raining a lot because अगस्त में बारिश होती है and अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट इट वॉज़ रियली नाइस एक्सपीरियंस क्योंकि मैं वहाँ पे गई एंड इट वॉज़ अ रियली क्यूट कैफ़े। आई मेड लाइक फ्यू क्लिप्स, मे बी आई पोस्ट अ रील अबाउट इट बिकॉज़ मैंने लॉन्ग फॉर्म नहीं शूट किया वहाँ पे बिकॉज़ आई वाज़ टू स्कैर्ड, क्योंकि पहला इंटरव्यू मेरा ख़राब हो चुका था। अब मुझे पता था कि यहाँ पे अगर हो भी जाता है तो चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं। तो फिर मुझे लगा कि अभी दूसरा इंटरव्यू ही बचा है जहाँ पे अगर अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर कुछ और देखते हैं क्या करना है। तो यही हुआ। तो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन Zuru, आई हैड रामेन, आई वाज़ जस्ट सिटिंग देयर चिलिंग, वॉचिंग रेन फ्रॉम द विंडो। फिर उसके बाद जैसे ही शाम हो गया, इट वाज़ अराउंड 3:30, फिर मैं गई वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए and the HR was really sweet. And mind you, she was genuinely very sweet. Again, I won't be naming the agency or anything, but ये वाली HR का और morning वाली HR का behavior was like poles apart, एकदम opposite. तो I really thought कि इसमें हो जाएगा because I filled the form. There was this a very small assignment that I did, and I was really hopeful about it. But जब कुछ गलत हो रहा होता है तो बहुत ही गलत हो जाता है। और मेरे साथ यही हुआ। मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड आई वाज़ लाइक ओके कि यहाँ तो हो ही जाएगा क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस भी इतनी नहीं थी। बट आई वाज़ लाइक अगर नहीं भी होता है तो कुछ और फिगर आउट करेंगे क्योंकि टाइम तो है ही। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी रिज़ाइन दे दूँगी। आई वाज़ जस्ट प्लानिंग फॉर माय बैकअप कि अगर मुझे कोई बैकअप प्लान मिल जाता है तो फिर मैं छोड़ दूँगी। अगर मुझे बैकअप प्लान नहीं मिलता है तो समहाउ आई विल स्पेंड सम टाइम हियर, उसके बाद आई विल लीव।
जो ये एक दिन में मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए, उसके बाद में मेरी ऑर्गनाइज़ेशन को मुझे लगता है पता चल गया था कि मैं तो जाने वाली हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब आई गिव द इंटरव्यू, आई डिडन्ट गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर नन ऑफ देम, दोनों में से कहीं नहीं हुआ। फिर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, फिर मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, बहुत सारी जगह अप्लाई किया। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने असाइनमेंट दिया और मेरा फाइनल राउंड है और मैं असाइनमेंट ही भूल गई। क्या? आई डिडन्ट, आई डोंट नो व्हाई आई वाज़ सो चिल अबाउट इट। बट जैसे ही मुझे ये पता चला दैट the whole planning and everything is going on in my organization and maybe things will be a bit complicated if I will not leave, I had no other option and I just said कि if I have to find a better job तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। और जब तक आप एक डू और डाई वाली सिचुएशन में नहीं होते हो ना, जहाँ पे आपको पता है कि अगर आप अभी तो मेरे पास सेफ्टी नेट था कि मेरे पास जॉब थी, तो मुझे ये था कि हाँ, ढूँढ लेंगे, चलेगा, मेरे पास तो है ही ना बैकअप ऑप्शन, तो मैं क्यों इतना स्ट्रेस लूँ। बट जैसे ही ये बैकअप ऑप्शन खत्म हुआ, दैट्स व्हेन आई थॉट कि अब तो मुझे ढूँढना ही पड़ेगा, वरना तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। एंड वो मैंने ऑप्शन कंसीडर नहीं किया। यस, तो उसके बाद मैंने और जगह अप्लाई किया। थैंकफुली जिस दिन मेरा लास्ट डे था, उसी दिन मैंने एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन में सेकंड राउंड क्लियर कर दिया था, जिसका एक और राउंड होना था और फिर एक और राउंड होना था। तो बेसिकली 2 राउंड्स और बचे थे। तो मुझे लगा कि एंड आई डोंट नो, आई वाज़ रियली होपफुल अबाउट इट। मुझे कहीं न कहीं उम्मीद थी कि मेरा इसमें हो जाएगा। पता नहीं क्यों, मतलब मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा था। ऑल्दो आई वाज़ रियली स्कैर्ड बिकॉज़ अगेन एज़ आई सेड आई वाज़ इन अ वेरी अननोन लोकेशन, आई डिडन्ट नो एनीवन, मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को बताती, दे वुड हैव पैनिक्ड अबाउट इट। तो मुझे लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। तो बट फिर भी वो ऑप्टिमिज़्म एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है, जहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं समझ आता है, कुछ भी नहीं समझ आता है कि आपको क्या करना है। तो बट मुझे ये था कि अभी सेकंड राउंड क्लियर हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड भी कर लेते हैं, हो जाएगा। तो मैं बहुत नर्वस थी। आई रेड अबाउट द होल ब्रांड, मतलब हर चीज़ एंड टू एंड सब कुछ पढ़ डाला मैंने। और इंटरव्यू का जो थर्ड राउंड था ना, इट वाज़ ऑफ अबाउट 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट में मुझे उनको ऐसा बताना था दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट देयर ब्रांड एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग, लाइक इन माय पर्टिकुलर फील्ड मुझे सब आता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। मतलब वो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ ए टू ज़ेड उन्होंने मुझसे हर चीज़ पूछ डाली कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे करते हैं, विद इट। एंड ही वाज़ एट वन पॉइंट वाज़ नॉट इवन हियरिंग व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि आई डोंट नो, मैं जैसे ही कुछ आंसर, तो विद इन लाइक मेरे आंसर का फर्स्ट 2, 3, 5 वर्ड्स भी वो पढ़ के उनको समझ, मतलब सुन के पता चल जा रहा था कि हाँ, मुझे आता है या नहीं। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग। मुझे इतना लगा कि उनको समझ आ रहा होगा। बट फिर मुझे लगा इस इंटरव्यू के बाद कि अब नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा इंटरव्यू था और उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड मैंने आंसर तो करा अपने बेस्ट कैपेसिटी में, बट यू नो आई वाज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बट आई क्वालिफाइड इट। एंड देन फोर्थ इंटरव्यू भी अच्छे से हो गया बिकॉज़ इट वाज़ टेक्निकली between the HR and the reporting manager, and she was just asking for my feedback, which was really positive, honestly. Yeah, I got the job. Yeah, so within like 5 days, I guess, मुझे जॉब मिल गई दूसरी जगह पे और कल मेरी जॉइनिंग है। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज़ अब मुझे वापस नहीं जाना। एंड या आई स्टार्टेड प्रेइंग एवरी डे, मतलब एवरी डे मैं अब पूजा कर रही हूँ। आई डोंट नो, आई कैन बी वेरी superstitious about it. I don't know. I don't know. It just made me and my faith more strong. क्योंकि इतना डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद जब आप निकलते हो, आई लेफ्ट एवरीथिंग भगवान के पास में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। ऑल्दो आई डोंट थिंक नाउ दैट आई एम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, मुझे नहीं लगता कि इतनी कोई बड़ी बात थी। आई कैन बी रॉन्ग, बट अभी तो मैं
खुश हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि अब कल मैं जाऊँगी फिर से ऑफ़िस और मैं अपना शेड्यूल सही करूँगी, मैं पूजा करूँगी और मैं क्या मेडिटेट भी करूँगी। मतलब दिस इज़ व्हाट आई वाज़ प्लानिंग टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मैंने रीडिंग करना छोड़ दिया है। नॉट दैट आई planned on leaving reading, but time ही नहीं मिलता. When you're living in PG, you have a lot of work to do. But I've decided to take some time out and read. And also, there was this one book that I was reading. Now, this is a book channel. I need to talk about books. There was this one book that I was reading. बहुत पहले, Energize Your Mind. And don't see my bookmark. वो पता नहीं क्या है. बहुत पहले मैंने कुछ तो है. तो ये मैंने इतनी पढ़ी है, आई थिंक 108 पेजेस तक मैंने पढ़ी है। बट उसके बाद आई डोंट नो आई जस्ट लेफ्ट बीच में ही। इट वाज ऑल अबाउट लाइक हाउ टू कम आउट ऑफ दैट वियर्ड सिचुएशन दैट यू आर स्टक इन एंड आई आई फाइंड बुक्स एट द राइट टाइम। मैं यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स लेके आई हूँ अपने घर से। मुझे लगा था मैं बनाऊँगी बहुत सारे वीडियोज़, बट कल मैंने सोचा कि आई शुड लाइक गिव सम टाइम इन द मॉर्निंग टू माय सेल्फ हेल्प और जस्ट सम टाइम फॉर माय सेल्फ आई शुड टेक आउट। तो मैंने सोचा कि ये मैं पढ़ूँगी एंड थैंकफुली मैं इसको ले आई थी अपने घर से। तो या दिस इज़ समथिंग दैट आई विल बी रीडिंग, दिस विल बी माय थंबनेल। सो या ये मैं वापस से पढ़ना स्टार्ट करूँगी कल से एंड जब आई विल रीड इट तब मैं इसका भी रिव्यू बनाऊँगी, देन आई विल पोस्ट अबाउट इट। सो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल टू बी अपडेटेड। या बट जितना मैंने पढ़ा था ये बुक बहुत अच्छी है। इट्स लाइक वेरी एग्जाम्पल एंड रिलेटेबल सिचुएशंस एज मैं सेल्फ हेल्प बुक नहीं पढ़ती, बट जहाँ पे सेल्फ हेल्प में आपके मतलब द ऑथर हैज रिटन अबाउट द एक्सपीरियंसेस नो, तो मुझे लगता है कि हाँ देन आई कैन रिलेट मोर आई गेस। मुझे थियोरेटिकल नॉलेज नहीं पसंद आई बिलीव। थियोरेटिकल नॉलेज से याद है दिस अनदर अपडेट अबाउट मी। आई हैव स्टार्टेड माय एमबीए in marketing. I have already did my graduation in marketing. तो मुझे लगा कि after some time I have some experience I will be doing it. तो मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था कि अब सही टाइम है कि मुझे अब अपना एमबीए करना चाहिए एंड नाउ आई एम अर्निंग इनफ टू अफोर्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन एंड उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ूंगी। बट अभी के लिए मैंने सोचा है एमबीए मैं कर लेती हूँ। तो मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। दिस इज अनदर अपडेट अबाउट मी इफ यू केयर टू नो। बाकी इट्स अप टू यू, आपको स्किप करनी है वीडियो तो आप स्किप कर सकते हो, मतलब कोई इशू नहीं है। आई थिंक या दैट्स इट। मैंने अपनी पहली वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मतलब उस टाइम पे मुझे लग रहा था ऑनेस्टली, मुझे लगा था कि बहुत ही पीसफुल है, आई विल टॉक अबाउट बुक्स, आई विल मेक वीडियोज़। मगर यूट्यूब चैनल चलाना भी इट्स अ टास्क, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता। आई डोंट हैव कंटेंट इन माय लाइफ, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू डेली ब्लॉगिंग वाला स्टफ। बट मैं करूँगी वो भी। आई हैव डिसाइडेड कि एवरी डे आई विल शूट वन रील व्हाइल मतलब वंस आई विल जॉइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मेरी कल से जॉइनिंग है अगेन। मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई अपनी अनएम्प्लॉयमेंट पे, फिर मैंने अपनी बताया कि मैं बुक्स रिव्यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं और मैं रीड भी करूँगी। तो मैंने 3 वीडियो उस पे बना दी। प्लान में मेरे और भी बहुत सारी थी कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ शूट करूँगी बुक्स के बारे में, और मैंने पढ़ी भी बहुत सारी हैं। मगर फिर मैं शिफ्टिंग में फँस गई। जब मेरी घर शिफ्ट हो गया, वहाँ पे सेटल होने में ही मेरे को टाइम लग गया। फिर यहाँ से कन्फर्मेशन आ गई, यहाँ से कन्फर्मेशन आई तो मैंने अपना जो अनपैक किया था फिर वापस से पैक किया और फिर मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के टाइम पे मैंने एक छोटा-सा व्लॉग टाइप का बनाया था, जो कि पूरा एडिटेड रखा है मेरे पास में। वो मैं पोस्ट कर सकूँगी मुझे लग रहा है 2-3 दिन में कर दूँगी। तो उसके बाद फिर अगर इफ यू वांट टू सी यू कैन कम बैक टू माय चैनल एंड वॉच इट। बट उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो फिर मैं यहाँ की वीडियोज़ बनाऊँगी। ये मैंने सोचा था।
कि एवरीडे आई विल बी। बट फिर जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं कोई काम करूँ, तो जब मेरे को काम ही करने का मन नहीं हो रहा था तो मैं अपना काम कैसे करती ये वाला। और फिर बड़ा अजीब-सा था, मेरे को कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शूट करूँ। बट जब मैं कल जा रही हूँ ना जहाँ पे, वहाँ पे मैं शूट कर सकती हूँ। मतलब कर सकती हूँ, ऐसा कुछ ऐसे पूरा फुल्ली कन्फर्म्ड नहीं है कि मैं करूँगी, बट मैं कर दूँगी। और धीरे-धीरे पता है कोइंसिडेंटली जहाँ मैंने करियर अपना गुड़गाँव में स्टार्ट किया था, फिर मैं लखनऊ वापस अपने होम टाउन आ गई। अब मैं वाप यहाँ पे दिल्ली आ गई और मेरा ऑफ़िस वापस से गुड़गाँव में है। मतलब मैं पीजी में रह क्यों रही हूँ दिल्ली में जब मुझे गुड़गाँव में ही रहना था तो। उसके लिए भी सॉल्यूशन है, धीरे-धीरे फिगर आउट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट है। बाकी मैं रीड करूँगी वापस से कल से, तो मे बी यू विल फाइंड सम वीडियोज़ रिलेटेड टू बुक्स अगेन। And thank you for watching. If you have watched till here, do subscribe to my YouTube channel for more videos like this and more videos about books and whatever I'm going to post. I'm not going to stick to any niche now. इतना तो मैंने सोच लिया है because of obvious reasons. और मैंने कोशिश करूँगी कि मैं frequently post करूँ. At least one reel, one shot. I don't know, every day. कुछ तो करना चाहिए ना. So thank you for watching. Do subscribe if you have reached till here. Thank you. Bye.